lecture is on the continuation of the previous one. अगर आपने पुराना lecture देखा है, इसका part 1 देखा है, तो you know part 1 में मैंने pteridophyta के general characteristics डाले हुए हैं, and here we are going to talk about the gametophytic stage. Okay, so yes, I am almost on the verge of completing the Kingdom Plantae series. So if you want any chapter to be started, please let me know in the comment box. Plus. Yes, I am starting with a series of previous 10-year questions of a particular chapter. So which chapter you want me to start with the first one? Please let me know, जिसमें हम discuss करेंगे last 10 years के MCQs. Okay, so let's get started with today's lecture, that is our pteridophyta. So if you remember पुराना वाला lecture, तो आपको याद होगा पुराना वीडियो, लास्ट वीडियो I mean to say, आपको याद होगा कि जो टेरिडोफाइट्स है उसमें जो मैंने लास्ट पार्ट आपको पढ़ाया था, that was about the plant body, right? So I talked on the previous module that plant body is sporophytic, which is dominant, independent and autotrophic, right? फिर आपको बहुत सारी चीजें बताई थी बेटा, वो स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, मदर स्पोर सेल्स, फिर उसे स्पोर्स आते हैं, स्पोर से प्रोथैलिस बनता है, राइट? सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोथैलिस इन टुडेज लेक्चर. सो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, दैट इज सिंथेटिक, ओके, दैट इज थैलॉइड एंड इट इज कॉल्ड एज प्रोथैलिस. क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट एज प्रोथैलिस. तो गैमेटोफाइट ओवर हियर इज कॉल्ड एज प्रोथैलिस. Okay, so now on the gametophyte there will be a development of male and female sex organ, right? And we already know the names. Male sex organ is antheridium and female sex organ is archegonium. Sex cell का नाम है biflagellated antherozoids और like female का egg cell का नाम है it's just a single egg cell. So both of them are going to fuse together in the presence of water and they are going to form zygote, which is diploid. Zygote is later on going to develop into sporophyll. Okay, if you remember, we call the leaf, right? We call the leaf in the previous module as sporophyll. So this zygote develops into that leaf, that is your sporophyll, which later on becomes independent. Okay, and this sporophyll later on some cells undergo meiosis. So if you remember, I have talked about the sporophyll in detail कि स्पोरोफिल के ऊपर माइक्रो और मैक्रोस्पोरेंजिया होता है, जिसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल्स, और वो खुद सेल्स होते हैं स्पेशल सेल्स which undergo meiosis and forms finally spores, and these spores later on germinate and it forms what? It forms your like prothallus. क्या बनाता है वो? Prothallus. Okay, so this is the life cycle of your pteridophytes, and they alternate between the sporophytic stage and gametophytic stage. Now let us talk about the spores in detail. Okay, so from here we are going to come here in this part. So the spores which are formed on the sporophyll could be either homosporous or heterosporous. Okay, it could be either homosporous or heterosporous. Homosporous means they are the same. Okay, so example over here is Lycopodium and Dryopteris. And heterosporous में the spores could be either macro or micro. It could be either large or it could be either small. If it is macro, the example is Selaginella and Marsilia, and if it is micro, the example is Salvinia. Okay, so this microspores will germinate and it will form female gametophyte. What it will form? Female gametophyte. And जो micro होगा, it will germinate and it will form male gametophyte. फिर जो female gametophyte होगा, that will be retained on the parent sporophyte for a variable periods, and finally the development of young embryo will take place within the female gametophyte. Okay, so this is the entire reproductive part. So let us just revise फटाफट से. So see, we all know that zygote बनता है, zygote से develop होता है sporophyll. स्पोरोफिल में कुछ सेल्स स्पेशल सेल्स होते हैं which undergo meiosis, they produce spores. अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं बेटा, वो दो टाइप के होते हैं, या फिर होमो या फिर हेट्रो. अगर होमो है तो एग्जांपल इज लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस. अगर हेट्रो है तो इट कुड बी लार्ज और स्मॉल. लार्ज वाला होगा जो डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में, स्मॉल वाला होगा वो डेवलप होगा मेल गैमेटोफाइट में. सो फीमेल गैमेटोफाइट विल बी रिटेन, वो स्पोरोफाइटिक स्टेज के ऊपर काफी देर तक रिटेन होगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल बी इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट.
ओके, सो एज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो उतने ज्यादा स्प्रेड नहीं होते, मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट दैट मच अमाउंट इन अवर एनवायरनमेंट. ओके, so this is the life cycle. Okay, so this is the life cycle of your pteridophyte. Now let us talk about the classification of pteridophytes. So let us talk about the classification of pteridophyta after completing the general characteristics. See, pteridophyta जो होते हैं बेटा वो चार में डिवाइड होते हैं, Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. क्या है? It is Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. Very easy to remember because इसे याद करने का एक बहुत easy तरीका है, that is please पढ़े. That is something जो आपके घर में हर कोई बोल रहा है, आपकी मम्मी पापा, कोई कॉल कर रहा है, चाचा चाची मामा, everybody is giving you ज्ञान that please पढ़े, which is absolutely correct बेटा because exams are very much near. ठीक है, so please पढ़े से आप कैसे याद रखोगे? P से आएगा आपका Psilopsida, L से Lycopsida, S से Sphenopsida and this P will stand for Pteropsida. ठीक है, ये तो चलो फिर भी हमें याद हो जाएगा, बट हम एग्जाम्पल्स कैसे याद करें मैम? यहीं पर आती है हमको बहुत सारी डिफिकल्टीज, तो आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, Psilopsida का बेटा एग्जाम्पल बहुत इजी है. इट इज लाइक द नेम सिलोटम. क्या है? सिलोटम. Psilopsida से निकला मेरा सिलोटम. Lycopsida से आ रहा है एग्जाम्पल Selaginella एंड Lycopodium. ये भी बहुत इजी है. लाइकोप से आया मेरा लाइकोपोडियम, लाइकोप से आया मेरा लाइकोपोडियम एंड सिडा से आया मेरा सेलेजेनेला. सिडा से क्या आया मेरा? सेलेजेनेला. सो लाइकोप जहां पर खत्म होता है वहां हमारा लाइकोपोडियम शुरू हो जाता है और सिडा जहां पर आता है वहां पर हम बोलेंगे सेलेजेनेला. ओके, इट्स अ वेरी गुड नेम ना, सेलेजेनेला, लाइक अ सिंड्रेला. ओके, लेट अस कम टू स्फिनोप्सिडा. यहाँ प्रॉब्लम है बिकॉज स्फिनोप्सिडा में डायरेक्टली इक्विसिटम पे कोई वर्ड नहीं आ रहा है यार, तो इसको आप क्या करो, जब भी आप स्फिनोप्सिडा लिखते हो ना तो ई को ऐसे लिखो. ठीक है, जस्ट राइट डाउन दिस ई, प्रैक्टिस इट लाइक दिस, तो आपको याद रहेगा कि इधर का जो ई है ना वो ही एग्जाम्पल है. इट इज इक्विसिटम. स्फिनोप्सिडा से आ रहा है इक्विसिटम. सी आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर निमोनिक, बट किंतु परंतु आई ऑलवेज प्रेफर टू मेक इजी निमोनिक. ये जो निमोनिक है ये थोड़ा लंबा है, इसे भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो निमोनिक भी पढ़ो, एग्जाम्पल भी पढ़ो. अरे पढ़ो कितना पढ़ो, राइट? सो उससे अच्छा है कि हमको ये तो याद करना ही है ना, चार क्लासिफिकेशन, तो उसी से हमने एग्जाम्पल निकाल लेने, तो दैट बिकम्स इजी फॉर अस. ठीक है, फिर कम्स टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? ट्रायोप्टेरिस. देखो टेरोप्सिडा है बेटा, टेरोप्सिडा. सो टेरो, तो टेरो से निकला टेरिस, टेरो से निकला टेरिस, टेरिस को आपने बोला तो पीछे लगा दो ट्रायोटेरिस. ठीक है, याद रहेगा. टेरो से निकला टेरिस, टेरिस के पीछे लगा ट्रायोटेरिस. हाँ, अब आता है एडियांटम, तो इधर भी वही करो, जब आप लिखते हो तो इसे लिखो टेरोप्सिडा, तो ए से याद आ जाएगा एडियांटम. ठीक है, दिस इज माई वे टू लर्न. ओके, आई विल tell you that truly this is my way to learn. I make it easy in the words only. I try to make it in the form of words only because जो words लिखे हैं उसमें से ही अगर मैं निकाल लेती हूँ तो मेरा निमोनिक का मेहनत भी कम हो जाती है. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं आपको हर चीज के लिए निमोनिक दूंगी तो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की 100 पेजेस की बुक तो सब निमोनिक से ही भर जाएगी. अरे भाई इतना तो पढ़ रहे हैं प्लस ये भी पढ़ो, बड़ी टेंशन. बट स्टिल आपकी तसल्ली के लिए आई विल गिव यू वन मोर निमोनिक. ठीक है, ये तो मेरा वे है, ये आ गया आप लोगों के लिए, अगर आपको ये नहीं पसंद आया है तो. सिलो लेंगा लाइक अ सेलेजेनेला, तरुणा अदिति दृष्टि तीनों पहनो एक साथ. क्या है एग्जाम्पल? सिलो लेंगा लाइक अ सेलेजेनेला, तरुणा अदिति दृष्टि तीनों पहनो एक साथ. हो गया ना याद करने की मेहनत, बट स्टिल अगर याद कर सकते हो तो सिलो से आया सिलोप्सिडा, सिलो से आया सिलोटम, लेंगा से आया लाइकोप्सिडा, लाइका सेलेजेनेला से आया लाइकोपोडियम सेलेजेनेला. ओके, तरुणा से टेरोप्सिडा, अदिति से एडियांटम, दृष्टि से ड्रायोप्टेरिस, तीनों से टेरिस, पहनों से स्फिनोप्सिडा, एक साथ इक्विसिडा. ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन रिमेम्बर सिलो लेंगा लाइक सेलेजेनेला, तरुणा अदिति दृष्टि, तीनों पहनो एक साथ. ठीक है, रेसिपी फेस्टिव सीजन है. ओके, इट्स अ फेस्टिव सीजन, दिवाली इज कमिंग हियर, तो लहंगा शॉपिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ फन.
So you can study like this, or if you want, you can study in my method like this. This is my method, ठीक है? And this is for my students. Now let us come to the last part, that is economic importance. ये टेरिडोफाइटास का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या ये हमारी जिंदगी में कुछ काम करते हैं या कुछ काम आते हैं या नहीं आते हैं? The first one is they protect soil from heavy rainfall and prevent soil erosion. तो जैसे कि हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, they form like a mat. तो वैसे ही ये जो टेरिडोफाइटास होते हैं, they also prevent soil erosion. They are used as biofertilizers. For example, Azolla sp. Roots have anamina to help nitrogen fixation. आप नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी सून जल्दी पढ़ोगे, ठीक है? तो आपको अभी याद रखना है कि इट इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स and many species are edible and used as vegetables, used as ornamental plants. So example over here is pteris and diopteris. See, usually बच्चे ये तो याद रखते हैं बेटा कि ये ornamental plants है, but examples भूल जाते हैं. बट एग्जामिनर्स को एग्जाम्पल्स ही चाहिए ना. एग्जामिनर आपको क्या पूछेगा? ओके, ऑर्नामेंटल, इतना इजी नहीं. विच आर द प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल्स? सो इट इज टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस, ठीक है? एंड इट ऑल्सो हैव फ्यू मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है? अभी ये हो गए मेरे आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल. अगर आप चाहो तो मैं आपको एक और निमोनिक दे देती हूँ. आज मैम बहुत ही अच्छे मूड में, 2 नहीं आज 3 देने के लिए तैयार है, ठीक है? प्लीज, ये मेरा निमोनिक है, मैं आपको प्लीज नहीं बोल रही हूँ, सॉरी. इट इज पहले सब लोग इक्वेशन पे ध्यान दो या फिर दे. पहले सब लोग इक्वेशन पे ध्यान दे. फिजिक्स का प्रोफेसर आता है, मैथ्स का प्रोफेसर आता है, तो क्या बोलता है? इक्वेशन पे ध्यान दो, इक्वेशन पे ध्यान दो, सम्स पे ध्यान दो. तो ये वही है, पहले सब लोग इक्वेशंस पे ध्यान दे. पहले से आया है मेरा सिलोटम, पहले से आया है मेरा सिलोटम, सबसे आया है मेरा सेलेजेनेला. आई लव दिस नेम, लाइक अ सिंड्रेला. सबसे आया है मेरा सेलेजेनेला, लोब से आया है मेरा लाइकोपोडियम, इक्वी से आया है मेरा इक्विसेटम, राइट? एंड पे से आया है मेरा टेरिस, ध्यान से आया है मेरा ड्रायोप्टेरिस, और ये ए को मैंने इधर ले लिया और लिखा मैंने एडियांटम. Done everybody. So this is again another third mnemonic to remember the pteridophytas. So you have so many mnemonics for pteridophyta, तो इसमें हम मिस्टेक नहीं करेंगे बेटा. इसके अलावा if you have seen my video, I have given you lots and lots of examples on leaves, right? लीव्स के बहुत सारे टाइप्स करवाए थे, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, तो वो भी आपको पढ़ने हैं इन डिटेल. ओके, सो हियर आई वुड लाइक टू वाइंड अप विद द वीडियो एंड आई वुड लाइक टू टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल. Till then, bye, take care everybody and study. Meet you soon. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe it, like करो, share करो और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको ट्रिक्स कैसी लगी, ठीक है? और कौन सी ट्रिक्स अच्छी लगी. प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स विच ट्रिक्स यू लाइक. ये मेरा वाला, ओके, अगर आपको फर्स्ट वाला बोलना है तो मैं आप इसको नंबर दे देती हूँ. ये मेरा फर्स्ट है, ठीक है? ये मेरा सेकेंड है और ये मेरा थर्ड है. तो आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय.